Hello, Namaskar. I am Santosh Kumar Pradhan and welcomes to my YouTube classes Odisha Economics. ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିଲାବସର ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ସବୁ ବହି ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ କେଉଁ ବହି ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଥିଲି। ତ ଆଜି ଆମେମାନେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯାହାକି ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କଳାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2020-21 ବା ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍ 2021-22 ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ବହି ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ ବା କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣେଇବି ଏବଂ ସେ ବହିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ମାଗଣାରେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସେ ସିଲାବସ୍ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ସିଲାବସର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପେପର 2 ଅର୍ଥ ହେଉଛି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ଏଥିରେ ଅଛି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମାଇକ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯାହାକି ମୌଳିକ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ଏଥିରେ ଆମେ ପେପର 2 ରେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କଥା ପଢ଼ିବା, ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କଥା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବା ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କଥା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯାହାକି ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅର୍ଥ ଉପକ୍ରମିକା ଯାହା ସେଥିରେ ରହିଛି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଡେଫିନେସନ, କାହାର ଡେଫିନେସନ, ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଡେଫିନେସନ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଅର୍ଥନୀତିର ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ସ୍କୋପ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସର ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବା ଅର୍ଥନୀତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାପରେ ମିନିଂ ଅଫ ଇକୋନୋମି, ଇକୋନୋମି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ସେଥିରେ କହିଛି ମିନିଂ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଅର୍ଥାତ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସ୍କାର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଚଏସ୍, ସ୍କାର୍ସିଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ବା ସ୍ୱଳ୍ପତା ଏବଂ ଚଏସ୍ ବା ମନୋନୟନ। ତାପରେ ଅଛି ଏଇସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ, ହାଉ ଆଣ୍ଡ ଫର ହୁମ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, ହ୍ୱାଟ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ହାଉ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ କେତେ ଉତ୍ପାଦନ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଫର ହୁମ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ, ମୌଳିକ ଅବଧାରଣା। ଏଥିରେ ଅଛି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭାବ, ୟୁଟିଲିଟି ଉପଯୋଗିତା, ଗୁଡ୍ସ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଭ୍ୟାଲୁ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରାଇସ୍ ଦର ଏବଂ ୱେଲ୍ଥ ବା ସମ୍ପଦ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ପଢ଼ିବା। ଏତକ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 1 ହେଲା। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଦେଖିବା। ୟୁନିଟ୍ 2 ରେ କ'ଣ ଅଛି, କନଜମ୍ପସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କନଜମ୍ପସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, କନଜମ୍ପସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପଭୋଗ ଓ ଚାହିଦା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି କନଜମ୍ପସନ୍ର ଅଛି ଲଜ୍ ଅଫ୍ କନଜମ୍ପସନ୍। ଲଜ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପଭୋଗର ନିୟମ। କ'ଣ ଅଛି ଉପଭୋଗର ନିୟମ, ପ୍ରଥମେ ଉପଭୋଗର ନିୟମ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମାର୍ଜିନାଲ ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଯେଉଁଟାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଓ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଲ ଅଫ୍ ଡିମିନିସିଂ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଯେଉଁଟାକୁ କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଲ ଅଫ୍ ଇକ୍ବି ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଯେଉଁଟାକୁ ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଯେଉଁଟା ଉପଭୋକ୍ତା ସନ୍ତୁଳନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡ, ଚାହିଦା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ମିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ୍, ମିନିଂ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାହିଦାର ଅର୍ଥ, ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାହିଦାର ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ମାର୍କେଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଜାର। ତ ଏଠି ରହିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବଜାର ଚାହିଦା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା।
तापर डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल अर्थ होची चाहिदा सारणी और डिमांड कर्व अर्थ होची चाहिदा रेखा। तापर मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व जोटा हमें क्लास पूर्व पढ़ीचे देख जाइए समस्ते वीडियो। तो से रही कौन मूवमेंट माने चाहिदा चाहिदा गति रे परिवर्तन। चाहिदार गति रे परिवर्तन केतेबेले हबो जेतेबेले चेंज इन डिमांड बा सॉरी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बा चाहिदार परिमाण रे परिवर्तन हबो। तापर अछि शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व माने डिमांड कर्व ही टोटल शिफ्ट हे जो। तो सेतेबेले सेटा केतेबेले हबो जेतेबेले चाहिदारे परिवर्तन हबो जोटा कि चेंज इन डिमांड हला। तापर अछि प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के आमे देखिबा कोन चाहिदार दर स्थिति स्थापकता बोली देखिबा। सेतिर अछि कांसेप्ट डिटरमिनेंट्स। चाहिदार स्थिति स्थापकतार कांसेप्ट कोन रहिछि देखिबा। डिटरमिनेंट्स माने चाहिदार दर स्थिति स्थापकता को सब फैक्टर्स अफेक्ट करूछि बा कोन सब चाहिदार स्थिति स्थापकता को निर्धारण करूछि के उपादान से विषय पढ़िबा। तारे मूवमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मूवमेंट माने सॉरी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आमे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किपरि भाबरे मेजर करबा किपरि भाबरे मापिबा हला। तार सब मेथड कोन रहिछि परसेंटेज एंड जियोमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड एवं जियोमेट्रिक मेथड अछि। तापर अछि रिलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर अर्थ होची मोट खर्च। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो एवं मोट खर्च रो भितर संपर्क कोन रहिछि ए विषय रे हमें पढ़िबा हला। तापर देखो प्रोडक्शन। देखो एठी गोटे जिंस कहबा को चाहिबी जे हमर जो एई यूनिट 1 एवं यूनिट 2 रहिला यूनिट 1 यूनिट 2 रहिला ए दुईटा कर टोटल मु वीडियो रे अपलोड करि सारछि माने हमें सेगुडा को क्लास करि सारछि हला। तो एटा हम पाई निश्चित रूपे नुआ यूनिट कारण ए सब कांसेप्ट दुईटा को विषय रे तुम माने निश्चित रूपे जानिछो। एटा हमें फर्स्ट टाइम एटा माने हमरे थर्ड यूनिट एटा। तो एटा हमें देखिबा कोन अछि थिरे एटा हमें पढ़िबा आपर। तो देखो एथिरे कोन रहिछि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रो अर्थ होछि उत्पादन। उत्पादन रे कोन रहिछि मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन जोटा को उत्पादन रो अर्थ बोली कहिबा एवं प्रोडक्शन फंक्शन जोटा को उत्पादन फलन बोली कहा जाए। एठी लिखा है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन लॉन्ग रन अर्थ शॉर्ट रन अर्थ होची स्वल्प काल एवं लॉन्ग रन अर्थ होची दीर्घ काल बा दीर्घ समय काल। तापर अछि टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल अर्थ होची मोट मोट प्रोडक्ट अर्थ होची तो कौन देखिलो प्रोडक्ट अर्थ होची प्रोडक्ट अर्थ कौन देखिलो एठी उत्पाद बा उत्पादन। तो टोटल अर्थ मोट एवरेज अर्थ हाराहारी एवं मार्जिनल अर्थ सीमांत उत्पाद विषय रे हमें पढ़िबा। तापर अछि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड रिटर्न्स टू फैक्टर जो थरे हमें धार ओडिया होची परिवर्ती अनुपात सूत्र से विषय रे हमें एथिरे निश्चित रूपे पढ़िबा हला। तापर कोन रहिछि देखिबा। तापर देखो यूनिट 3 सरी गला। तापर यूनिट 4 रे देखो कोन रहिछि कॉस्ट रेवेन्यू एंड सप्लाई जोटा को कॉस्ट अर्थ होची परिव्यय रेवेन्यू अर्थ होची आय एवं सप्लाई अर्थ होची जोगाण से विषय रे पढ़िबा। प्रथम रहिछि कॉस्ट विषय रे। कॉस्ट रे अछि मनी एंड रियल कॉस्ट। मनी अर्थ होची मौद्रिक एवं रियल कॉस्ट अर्थ होची वास्तव जोटा को मौद्रिक परिव्यय और वास्तव परिव्यय विषय रे पढ़िबा। इम्प्लिसिटी एंड एक्सप्लिसिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिटी कॉस्ट अर्थ होची हिसाबगत बा दृश्यमान परिव्यय इम्प्लिसिटी कॉस्ट हला। तापरे एक्सप्लिसिटी कॉस्ट अर्थ होची लुकायित बा प्रच्छन्न परिव्यय से विषय रे सब पढ़िबा हमें। तापरे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड अर्थ होची स्थिर परिव्यय एवं वेरिएबल कॉस्ट अर्थ होची परिवर्तनीय परिव्यय। तापरे टोटल एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट इन शॉर्ट रन एंड देयर रिलेशनशिप। ताले से कहिची स्वल्प काल रे मोट परिव्यय तापरे हाराहारी परिव्यय एवं सीमांत परिव्यय भितरे संपर्क उपस्थापना करा बा संपर्क देखा बोली कहिची ए विषय ताले पढ़िबा हमें। तापरे अछि रेवेन्यू।
रेवेन्यू अर्थ आय आय रे कौन रही टोटाल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू अर्थात मोट आय हाराहारी आय और सीमांत आय एंड देयर रिलेशनशिप एवं सेमानक मध्यरे कौन सब संपर्क रही से विषय देखिबा। तापर अछि सप्लाय मीनिंग एंड लॉ ऑफ सप्लाय सप्लाय अर्थ होची जोगाण मीनिंग अर्थ माने जोगाण रो अर्थ कौन देखिबा एवं लॉ ऑफ सप्लाय माने जोगाण सूत्र गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एटा से विषय रे मध्ये हमें पढ़िबा हला। तापर अछि मार्केट मार्केट अर्थ होची बाजार बाजार विषय रे देखिबा बाजार सब कौन रही मीनिंग एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट अर्थ मीनिंग अर्थ बाजार अर्थ कौन एवं बाजार प्रकार भेद केते प्रकार बाजार रही प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन प्योर अर्थ होची शुद्ध एवं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तापर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई से कहिची एठी जोटा को हमें गोटे लॉन्ग क्वेश्चन एटा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रे दर निर्धारण एवं इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई एवं चाहिदा और जोगान रे परिवर्तन हेले संतुलन दर रे कौन परिवर्तन हुए से विषय रे मध्य पढ़िबा। तापर मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोली जोटा को एकाधिकार अर्थ बोली देखिबा हमें मोनोपोली अर्थ एकाधिकार। तापर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्थ होची एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता। तापर ऑलिगोपोली अर्थ अल्पाधिकार सब ए विषय रे पढ़िबा तार अर्थ कौन रही तार फीचर्स सब कौन रही। तापर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जोटा को हमें प्रारंभिक समष्टि अर्थनीति भाव देखिबा हैला। तो एथिरे सब कौन रही देख प्रथम अच्छी मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थे समष्टि अर्थनीतिर अर्थ तापर डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एठी लिखिनी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैला जोटा को हमें समष्टि अर्थनीति और व्यष्टि अर्थनीति भितर पार्थक्य देखिबा मु पढ़े सारी सेटा माने डिस्कशन करि सारी से तथापि ए यूनिट रे आमे एटा को निश्चित रूप आउ थरे पुनी भल रे देखिबा। तापर अछि पब्लिक फाइनेंस अर्थ होची जोटा यूनिट 7 अछि एटा हिची यूनिट 6 तो सेथरे आमे देखिबा यूनिट 7 रे पब्लिक फाइनेंस से राष्ट्रीय वित्त बा राष्ट्र वित्त विषय रे देखिबा जो थरे की मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस अर्थ राष्ट्र वित्तर अर्थ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस जो थे आमे पब्लिक फाइनेंस अर्थ होची राष्ट्र वित्त एवं प्राइवेट फाइनेंस अर्थ होची कौन व्यक्ति वित्त तो से आमे व्यक्ति वित्त और राष्ट्र वित्त मध्य पार्थक्य देखिबा। तापर अछि बजेट विषय रे पढ़िबा बजेट रे कौन रही मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव बजेट रो प्रकार अर्थ एवं तार कौन देखिबा ऑब्जेक्टिव्स माने तार लक्ष्य मध्य देखिबा बजेट रो लक्ष्य कौन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजेट जोठरे हमें बैलेंस्ड अर्थ होची समतुल अनबैलेंस्ड अर्थ होची असमतुल बजेट विषय रे देखिबा। सरप्लस एंड डेफिसिट बजेट सरप्लस अर्थ होची बळका एवं डेफिसिट अर्थ होची नियंटिया बजेट ए विषय रे मध्य हमें पढ़िबा। तापर देख मु तुमको कहितली यूनिट रो शेष रे मु तो मानकु सिलेबस रो शेष रे निश्चित रूपे बुक सब को बही तमे माने रेफर करिवो बा को बही सब फॉलो करिवो से विषय रे कहबी। देखो एटी लिखा हैजी ब्यूरोज हायर सेकेंडरी +2 इकोनॉमिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 पब्लिश्ड बाय ओडिशा स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक्स प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन भुवनेश्वर। तो यही बहीटा तुम मानकु फॉलो करबा उचित हैला। तो देखिबा से बहीटा को बही देखो से बहीटा होची एई बहीटा ब्यूरो उच्च माध्यमिक अर्थशास्त्र द्वादश श्रेणी जोटा कि एउडो लिखा हैतिला तळे सेटा इंग्लिश रे लिखा हैतिला हैला। तुमे ए बहीटा निश्चित रूपे पढ़ी परिबो माने फॉलो करि परिबो। तापरे रहिची युक्त 2 अर्थशास्त्र द्वितीय भाग ए बहीटा भी तुम पढ़ी परिबो प्रारंभिक व्यष्टि और समष्टि अर्थनीति जोटा को लिखसंती पीके मानसिंह सार एवं सुधाकर पात्र सार
ए बहीटा को तुम देखिपर पढ़िपर निश्चिंत रूपे। तापर अच्छी मौलिक व्यष्टि और समष्टि अर्थनीति जोटा को एलिमेंटारी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक फॉर +2 आर्ट्स एंड साइंस स्टूडेंट्स। आर्ट्स पिला साइंस पिला बेसिकली आर्ट्स पिला यहाँ ओडिया मीडियम रे रहुची। तो सेकेंड ईयर पिला +2 सेकेंड ईयर पिला जोटा को लिखिसेंती विवेकानंद दास सार एवं सत्यजित दास महापात्र सार। तमें ए बही मध्य देखिपर। ए बही दुईटाक बही मार्केट रे अवेलेबल हो जाउची, किंतु तुम्हें यही बहीटा को फ्रीली पाइपर। केमिति फ्रीली पाइब देख, तुम्हें माने समस्ते बही पीडीएफ जदि क्या दरकार समस्ते प्ले स्टोर को जीव एवं प्ले स्टोर को जाइकी सेथिरे कौन करिवो सर्च करिवो जे +2 कॉलेज बुक्स हैला। +2 कॉलेज बुक्स सर्च कला परे तुम्हें माने निश्चित रूपे एमती गोटे प्रिफरेंस पाइबो। देख एमती गोटे पेज पाइबो बा एमती गोटे आप टे पाइबो तुम्हें माने हैला। एई ऐप टा को तमे जदि डाउनलोड करूचो खाली इकोनॉमिक्स बुक बोली नहीं, तमे +2 रो जे कोनोसी बुक गाइड एथिरु फ्री ऑफ कॉस्ट रे पढ़ी पारिबो एवं तमे कौन करि पारिबो डाउनलोड मध्य एथिरु निश्चित रूपे करि पारिबो। ओडिया मीडियम रो बही +2 फर्स्ट ईयर रो हो सेकेंड ईयर रो हो। तो समस्त कहबी निश्चित रूपे यही एप्लिकेशन टाको डाउनलोड करके से बही निश्चित रूपे पढ़ है। तो आउ गोटे जिनस कहवाक चाहिए जे आमर ऑलरेडी यूनिट 1 यूनिट 2 ऑलरेडी आमे पढ़ी सारीचे एवं आमर नेक्स्ट एबे नेक्स्ट जिनस होची आमे यूनिट 3 स्टार्ट करिबा हैला। तो जो माने वीडियो को देखिन पूर्वरु से वीडियो को निश्चित रूपे देख, आमर यूनिट 3 स्टार्ट हो एवं जो माने वीडियो को मध्य सब्सक्राइब करिनो से माने मध्य निश्चित रूपे वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को। कारण मु आगो को जो वीडियो गुड़ाक यूनिट 3 पढ़िबा आमे यूनिट 3 रो अपलोड कला परे तमे निश्चित रूपे से वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम पाखु जीवो हैला। तो धन्यवाद।